Hello everyone, welcome back to my channel Thinker by Philip. And again we are here with a new video of genetic series Test Cross and Macross. Let's see what it is. Okay, test cross. A test cross is done to determine the genotype gene of an organism that shows the dominant phenotype. For example, if a pea plant is tall, its genotype could be either, because for TT also we tell it as tall, and for this also we tell as tall. But how come we are going to know that a plant has the genotype capital T or the heterozygous one? कैसे हम लोग जानेंगे कि अगर कोई टॉल प्लांट देख रहे हैं तो हमें कैसे पता उसका जीन क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस है? Since both genotypes produce the tall phenotype, you cannot tell the genotype just by looking at the plant. So a test cross is performed to find the unknown genotype of an individual showing a dominant phenotype. अगर height की बात करें तो इसमें dominant phenotype क्या होगा? Tall. ये dominant phenotype है. तो ये टॉल को हम लोग बाहर से एक प्लांट को देख के कैसे जानेंगे कि ये प्लांट का जीनोटाइप क्या है? उसी चीज को जानने के लिए वी आर गोइंग टू use this test cross, और ये होता है by crossing it with a homozygous recessive individual. So let's see example. How a test cross helps. Cross the tall plant with the homozygous recessive, that is dwarf plant small t. अगर the plant is tall, capital T, it is being crossed with small t, then all the offspring will be tall with the genotype capital T small t, that is the heterozygous. So all result is 100% tall offspring. But if the tall plant is heterozygous, then the offsprings will be 50% tall and 50% dwarf. तो मान लीजिए अगर मैं एक टॉल प्लांट मुझे मिला, ठीक है, उस टॉल प्लांट को मैंने अगर रेसेसिव से क्रॉस कराया, तो अगर वो टॉल प्लांट का जो जीनोटाइप होगा, अगर वो कैपिटल टी होगा, तो वो उसके ऑफस्प्रिंग क्या होंगे? सारे के सारे 100% टॉल होंगे. अगर उस प्लांट जो टॉल प्लांट है जिसको हम लोगों ने क्रॉस कराया विद द रेसेसिव वन, अगर उसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है, मतलब हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, तो उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे 50% टॉल होंगे और 50% डॉर्फ होंगे. तो हम लोग किस पे बेसिस पे डिसाइड कर देंगे उसका जीनोटाइप? ऑफस्प्रिंग को देख के. अगर ऑफस्प्रिंग 100% है, टॉल है, तो मतलब उसका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल टी. और अगर ऑफस्प्रिंग 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ है, इसका मतलब जो जीनोटाइप है उस प्लांट का वो है कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. तो पर्पस क्या है क्रॉस का? To identify whether an individual with a dominant trait is homozygous dominant या फिर heterozygous. I hope this is clear to you. To verify the genetic makeup, that is the genotype of an organism, and widely used in genetics, plants breeding and animal breeding program. So this was the test cross. हमेशा याद रखना है, a test cross is being crossed by homozygous recessive one. Back cross. A back cross is done to transfer, recover, or maintain desirable traits from a parent in the offspring. एक definition देखते हैं क्या है? A back cross is the crossing of an F1 hybrid with either of its parent. जैसे ये हो गया, इसका ऑफस्प्रिंग क्या बनेगा F1 में? ये. अब इस F1 ऑफस्प्रिंग को आइदर ऑफ द पेरेंट के साथ हम लोग क्रॉस करा सकते हैं, किसी भी पेरेंट के साथ कराएंगे, दैट इज नोन एज बैक क्रॉस. ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ इसके साथ कराएंगे दैट इज टेस्ट क्रॉस. तो व्हाई इट इज डन? टू रिकवर पैरेंटल कैरेक्टरिस्टिक. क्रॉसिंग दी
F1 back to the parent increases the proportion of the parent gene in the offspring. अगर मैं इसको इसको सेल्फिंग कराती तो ये ज्यादा चांसेस है कि इसके जो जीन है वही सिर्फ ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते F2 जनरेशन में। पर अगर इसको मैं F1 जनरेशन को ही अगर बैक क्रॉस करा के पेरेंट्स के साथ ही क्रॉस कराऊंगी तो पेरेंट्स में जितने भी जीन है या डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है या फिर डिजीज रेजिस्टेंट जीन है वो सारे न्यू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये ज्यादा अच्छा होगा। टू इंट्रोड्यूस अ डिजायरेबल ट्रेट टू इनटू अ पेरेंट लाइन, plant and animal breeders use back crossing to transfer traits such as disease resistant, high yield या फिर better quality into preferred variety। ये सब चीजें हमें अगर न्यू वैरायटी में चाहिए तो ये हम लोग पेरेंट से ही क्रॉस करवा देते हैं। To study inheritance patterns, genetics use black crosses to analyze how traits are inherited. So this was it for back cross. Let's see an example. जैसे कि एग्जाम्पल हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल ड्वार्फ। F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल हो जाएंगे। नाउ क्रॉस दिस F1 जनरेशन बैक टू वन ऑफ इट्स पेरेंट्स। तो अगर हमने डोमिनेंट के साथ किया तो क्या दिखा कि 50% टॉल 50% होमोजाइगस टॉल और यहाँ पे हेट्रोजाइगस टॉल, मतलब ऑल पेरेंट्स आर टॉल। अगर हम लोगों ने इसके साथ किया तो सारे के सारे पेरेंट्स जो प्लांट्स हैं ऑफस्प्रिंग है वो टॉल हो गए। लेकिन अगर वही रेसेसिव प्लांट के साथ किया, रेसेसिव पेरेंट के साथ किया तो ऑफस्प्रिंग में क्या दिखा कि टॉल और ड्वार्फ। दिस इज particularly back cross is also a टेस्ट क्रॉस। तो इस ये वाला जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी ये F1 जनरेशन में आया, इसको हम लोगों ने अगर कैपिटल टी के साथ किया तो यहाँ पे ऑल टॉल मिल गया। लेकिन अगर हम लोग इसी को अगर स्मॉल टी के साथ करेंगे तो 50% टॉल मिलेगा और 50% ड्वार्फ मिलेगा। तो ये रेसेसिव पेरेंट है ना, तो इस रेसेसिव पेरेंट को इस टाइप के बैक क्रॉस को टेस्ट क्रॉस भी कहा जाता है, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में होमोजाइगस रेसेसिव से ही तो क्रॉस हो रहा था। So key point what you need to remember, every test cross is a back cross but not every back cross is a test cross। हर एक टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस है क्योंकि रेसेसिव पेरेंट से हो रहा है तो ये बैक क्रॉस है, पर हर एक बैक क्रॉस क्योंकि ये डोमिनेंट से भी हो रहा है तो इट इज नॉट ए टेस्ट क्रॉस। आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल टू यू। Stay tuned with us for happy learning. If you like this video, do share it with your friends as well. And thank you so much for watching this video. Do like, share, and subscribe Thinker Biofilic for more such videos. Thank you.